So let's start, Jay. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So first of all, tell me what is the hosting? So, hoisting is a phenomena in JavaScript by which we can access our variables and function even before their declaration. So, Can you show me the example? okay, sir. Uh, okay. So, in JavaScript, we can declare variable with any value and we can create function like hello and console.log hi. So we can access variable and function before their declaration in JavaScript. So I'm accessing a over there, it is showing me undefined, and I can also call function before its declaration, it's giving me hi. So in other languages this will give us error because it will assign memory line by line, but there is a different concept in JavaScript because our code is executed in two phases. The first one is memory creation, by which all the variables and function got assigned memory in our code. So the variables will assign by a default keyword name undefined, and function will assign by its function creation. Simple function assigned by function. So we can access that variable and function before their declaration. But there is a catch. We cannot access let and const variable before their declaration because of temporal dead zone. They are hosted like var variable, but they have a strict concept by which we cannot access let and const before their declaration. So this is why things. Okay. In which type function hosting is not applied? In, we cannot apply function in hosting in function expression. Like I'm expressing a function, anonymous or normal function, console.log uh, I, and if I'm accessed, if I'm call, I will call a, it will give us reference error, says that a cannot access before initialization. Oh sorry, if I declare variable with a, so it says that a is not a function because a it assigned with default keyword at memory creation phase, and when it runs in code execution phase, then it will assign to a variable. So before code execution phase it will assign by undefined, so we cannot call this by we cannot call function expression, and we cannot call function fat arrow function, or we can say arrow function. So hello, so we cannot call this function before initialization, before declaration. So we cannot call hello, or we can assign where, so it is also not accessible. Yes sir. Okay, got it, got it. And what is the difference between the function and methods? Sir, any function which is created inside our global execution context, or we can say function declare inside function. So outer function, it is called function, or we can create inner function. It is also called function. But any Show me the example. declared inside object is says as method. So this is called method. This is called as method, and this these are functions. Okay, got it. Okay. So what is the callbacks? So callbacks is a concept in JavaScript by which we can pass function as a value inside another function, and it will call back when it's finished execution. It starts like if we pass outer function, if we call outer function, and it has task to console name, and we can also create inner function. Uh, it has another function like hi.
So whenever we have dependency on function, so we have to call inner function when outer function finish its task. So we can pass inner function as a callback. Sorry, we can get callback, and we can call after it will console our name. So this is known as callbacks. Okay. How many types of callbacks? How many types, sir? How many types of callbacks? Um, I know, sir. This I don't about other types. I know about this one only. Okay. Okay. And my next question is, Okay. in which cases we are using the callbacks? Sir, first one is whenever we have dependency on first function, like uh, we can say that if we have API like create order function, and we have another API to create show summary of payment. Yeah, payment payment summary. So we can pass this payment API to create order API as a callback, and when create order API will do it task, it will call show payment function. We can wrap this function as a in another function. So we can say function, our normal anonymous function, and we can call it, and we can pass this function as a callback, and it will in create order API it will call callbacks when it finishes its task. So it will call our callback. So whenever the two or more function have dependency, so then we use callbacks. Okay. Uh, do you know that the promises? Yes, sir. Why we are using the promises? Sir, in callbacks, the first one limitation is that if we pass another function to a API, so the API is created by backend services, and we don't know that it will call our callbacks guarantee or not. So first one is it will we can say it creates inversion of control. So we don't have the control to call our function. It will called by some other person. Second one is that the callback creates a callback hell. So if we pass callback for create function, and so suppose inside inner function we have another dependency, so it will create callback hell, and we our code will grow horizontally. So it then we used promises to resolve our async function. So uh, like if we have fetch function, and uh, and we have another so I can do it with create order. So if we have create order API, so we can attach dependency for that functions, like if create order promises will resolve, then it will call the another function like show payment uh, API. And if we have promise chaining, so we can return this show payment, and we can attach another dependency for that. We can also pass uh, like source summary for that. So You can explain me in Hindi. Okay, correctly, please. okay. So सर इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे सेम ही अगर मैं एग्जांपल दूं कि सर कोई भी अगर हमारा एसिंग टास्क होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। और जैसे कॉल बैक्स में हमारा कंट्रोल नहीं होता कोड के ऊपर कि वो कोड एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रोमिसेस में हमारे पास गारंटी होती है कि जब फर्स्ट प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा, तो उसके एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉमिस चल जाएगा या नेक्स्ट एपीआई चल जाएगी।
तो इसलिए हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है डॉट देन, एक होता है डॉट कैच, एंड डॉट फाइनली भी होता है। सो हम डॉट देन से प्रोमिसेस की चेनिंग करते हैं, जैसे मैंने करा था क्रिएट क्रिएट ऑर्डर। अगर ये प्रॉमिस चल जाएगा देन वो देन वाली कॉल करेगा। और ये जो प्रोमिसेस होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर एक हमारे पास डेटा टाइप में कुछ होता है, और जो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है, एंड जैसे ही हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो ये कुछ हमें डेटा देता है। लाइक क्रिएट ऑर्डर में उसने हमें ऑर्डर आईडी दी, तो यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर आईडी मिलेगी तो हमें पता है कि ऑर्डर आईडी मिलते ही हमें क्रिएट पेमेंट की एपीआई चलानी है, क्रिएट पेमेंट की, जिसमें हमें ऑर्डर आईडी पास करनी है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिलेगी। तो इसके बाद हम क्रिएट पेमेंट की एपीआई चलाते हैं और उसमें हम अपनी ऑर्डर आईडी डाल सकते हैं। और अगर हमें और इसमें चेनिंग करनी है तो हमें इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉमिस होता है, जो भी एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं वो सारे प्रोमिसेस होते हैं, और डॉट देन लगा के हम प्रॉमिस चेनिंग कर सकते हैं। इसमें तो और डिपेंडेंसी पास हो सकती है। अगर हमारे पास कोई एरर वगैरह आ जाए तो हम डॉट कैच लगा के यहाँ पे हम एरर पास कर सकते हैं और उसको हम कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर, ऐसा कर सकते हैं। जी सर। So simply you create a one simple promise that that return the resolve state after the 2 second. ओके Any message you can return it. ओके Okay. So create it. ओके, सो वी कैन क्रिएट promise first, promise one. Okay, so I will create it inside a function. Mm, say hi, and inside this function I will create a function, a new promise, and inside that we have resolve and reject. If suppose we have name, so if we have name we can simply resolve that with set timeout. 2 second resolve hello with name, else we will reject our function. Reject const error. mm, so this will create us a promise. So suppose we called our say hi promise, so we can assign dot then, it will give us data. So we can simply console log our data. So if we pass say hi and we pass j, so it will call a promise and dot then it will return us a data. Or if we got error, send to create us. So, yes sir, this will give us I think property like dot then, mm, dot then say hi function. Okay, cannot use property of dot then. Okay, so we have to return promise. Ah, yes sir, it will console hello j after 2 seconds. So if it doesn't pass our name, it will simply give us error after 2 seconds. Yes sir. Good. Mm, do you know that sync and wait? Yes sir. Why we are using it? Sir,
जो हमारे प्रोमिसेस होते हैं उसमें हम एसिंक्रोनस टास्क कर लगा देते हैं, तो उसमें हम अगर हमें डॉट देन करके डॉट कैच करके हम एसिंक ऑपरेशन को रिजॉल्व करते हैं। बट इसमें हमारे पास जो अगर हमारे पास कोई कोड है जो कि वो तभी चलना चाहिए जब हम स्टे हाई को कॉल करें, तो हमें हर टाइम वो कंसोल लॉग या इसके नीचे पास करना पड़ेगा, या फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें जो कि कंसोल करे कि सिंपली रन करके। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है वो सिंक्रोनस होता है लैंग्वेज, तो ये क्या करेगा, पहले प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा। प्रॉमिस जो होएगा वो देखेगा कि एसिंग टास्क है, तो वेब एपीआई के पास भेज देगा, वो इवेंट लूप के पास। तो देन जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तो वो ब्राउजर के पास रहेगा, और तब तक वो इस नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो हमारा सिंपली यहाँ पे कंसोल में होगा वो पहले रन आएगा, देन उसके बाद हेलो जे आएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास ये एपीआई की डिपेंडेंसी नहीं होती कि जब तक ये कॉल नहीं होगा हम नेक्स्ट को कॉल कर सकते हैं। बट जो अवेट वाला जो हमारा फंक्शन होता है वो भी हमारा एसिंक ऑपरेशन को रिजॉल्व करता है। पर इसमें एक फीचर होता है कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिंक फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ फंक्शन लाइक एपीआई। Listen. So you are creating a one function that's name is say hi. Okay. ओके। That's written a one promise. यस सर। Similarly, create another function that's also written a one promise. ओके। Okay. So solve these all two promises by using the async and wait. ओके। ओके। So say hi, and the second one is show date something. It will give us date dot now. Mm, so if we execute function oh, normal function run, so we create async function, and response one हम इसमें अवेट लगाते हैं, और इसमें हम कॉल करते हैं से हाई को, जिसमें हम रिस्पॉन्स फर्स्ट देंगे, और जो रिस्पॉन्स टू है उसके लिए भी शो डेट हम कॉल कर सकते हैं। तो जो एसिंक का वेट होता है वो हमारा कोड ऐसे चलता है कि जब तक हमारा फर्स्ट प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं आएगा। और अगर हम इसके नीचे कोई कोड भी लिखे, जैसे मैंने लास्ट टाइम रन करा था, तो वो भी एग्जीक्यूट जब तक नहीं होगा जब तक हमारी उससे ऊपर की लाइन चल नहीं जाती। तो अगर हम यहाँ पे रन को कॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जय को एग्जीक्यूट करेगा, देन वो वेट करेगा जब तक जय जय आ जाता है, देन उसके बाद वो डेट को शो करेगा, देन उसके बाद वो रन को चलाएगा। तो ये तीन चीजें होंगी। तो फर्स्ट वन इज हेलो जय आएगा। आई थिंक ओके, यहाँ पे मैं सिंपली रिजॉल्व कर देता हूँ इसे। तो ये पहले हमारा नेम देगा, से हाई नेम देना चाहिए। The name in the run function. Response one and response two printed. ओके। ओके सॉरी, रिस्पॉन्स वन एंड रिस्पॉन्स टू। हाँ, तो पहले हमारा नेम देगा, फिर हमें डेट दे देगा, और देन उसके बाद रन चलेगा। तो ये डिपेंडेंसी बनाने काम आते हैं। ये सेम टास्क हम प्रोमिसेस में भी रिजॉल्व कर सकते थे, बट उसके लिए हमें डॉट देन चेनिंग करनी पड़ती प्रोमिसेस के लिए। बट इसमें क्या है कि हमारा सिंटेक्स ज्यादा आसान हो जाता है, और अवेट कीवर्ड से नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, तो इसलिए हम एसी का वेट यूज करते I got it. Let's assume it. हैं। ओके। First promise is failed. ओके Then what you are doing? सर, वी हैव And अनदर। and I want to that if first promises is failed, then code is not move in another line. So how do you solve it? Okay, okay. So in promise chaining, we have dot that attachment for that. So it will go to catch function if we got an error. But inside our async await function, we can also use try catch function, try catch method, or we can say attachment. So if we failed our first promise, so it will goes to catch statement. So suppose we failed our first promise, say hi,
it will not go to the next line, it will simply go to error and console the error, like sorry. Yes. Got it. Let's assume it. Hmm. In this case, Okay. we don't know which promise is failed, like first function promise fails, yeah, second function promise failed. So how do you handle this? uh Let's assume it first promise is resolved successfully, but second promise is failed. okay, So okay. how do you handle it? So suppose we have to run our second method. Okay, so इसमें गारंटी होगी कि मतलब सेकंड प्रॉमिस फेल होगा लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ चलाना है क्या? नहीं, सेकंड प्रॉमिस फेल है, आगे का नेक्स्ट कोड जो है वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो सर इसके लिए भी हम सिंपली वैसे तो डॉट ट्राई कैच का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसके बाद भी अगर चलाना है कि अगर सेकंड कोड भी फेल हो जाता है लेकिन हमें कुछ एक कोड एग्जीक्यूट करना है जो कि चले ही चले, अगर कोई भी हमारा कोड फेल हो जाए तो हम फाइनली का भी यूज करते हैं। और अगर सर अगर हमें दोनों को लिए चलाने की ट्राई कैच काम करे तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए काम करेगा अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दे। No, no, no. Listen. ओके। Uh, in this case, I don't know which promise is failed. ओके। First promise, the second promise. हाँ। Do you know it which promise is failed नो। in this case? हाँ यस सर, वैसे अभी तो नहीं होगा लेकिन हम कर सकते हैं। कैसे? नहीं सर, वैसे पता नहीं रहता कौन सा प्रॉमिस में। हमें नहीं, या हमें ये पता करना है कि कौन सा प्रॉमिस फेल हुआ। ओके। कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, हाँ। बट हमें ये जानकारी नहीं मिली कि कौन सा प्रॉमिस जाके फेल हो गया, क्योंकि तुमने ट्राई कैच एक लगाया हुआ है, हाँ। तो वो बता देगा हमें कि कौन सा प्रॉमिस फेल हुआ है। नहीं सर, वो सिंपली एरर को कंसोल करेगा। या सो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, तो सर कंसोल वन कंसोल टू। सर वैसे तो हम इसमें भी ट्राई कैच लगा सकते हैं कि अगर हम पता करें कि जैसे यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये है फर्स्ट रिस्पॉन्स का, यानी कि रिस्पॉन्स वन कर सकते हैं इस एरर को, और इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे ट्राई कैच लगा सकते हैं कि यहाँ ट्राई करें और अगर ये प्रॉमिस फेल हो जाए तो ये दोबारा से कंसोल कर दे, तो शायद ये कोड बता सके कि हमारा क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर यहाँ पे रिजेक्ट कर दें हम और फर्स्ट वन हमारे रिजॉल्व होगा, तो फाइनली ओके, सो फाइनली में ये नहीं होगा। सो फर्स्ट हेलो जे आया, देन ओके ये तो रिजॉल्व हो गया। रिजेक्ट में डेट डॉट नाउ नहीं, रिजेक्ट में कॉन्स्ट सो पहला हमें चलेगा हेलो जे चलेगा, देन उसके बाद सेकंड चलेगा तो एरर आ जाएगा, तो रिस्पॉन्स टू आना चाहिए था, एरर आ गया पहले। या इट्स करेक्ट, सही है। ठीक है सर। या सही है, पहला चला, दूसरा वाला रिसॉल्व हुआ, इसमें एरर आया हाँ। उसमें, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। ओके सर। तो क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है इसमें? नहीं सर, मैं इसमें मैंने रिस्पॉन्स लिखा था, आई थिंक वो एरर की हाँ, वजह वो से। वो तो वो तो अच्छा पहला अच्छा ट्राई अच्छा, कैच हाँ है। यहाँ रिस्पॉन्स मुझे देखा नहीं था, ये रिस्पॉन्स। या ओके। ओके ठीक। ओके, व्हाट डू यू थिंक दिस कोड इज गुड? Sir, for syntax purpose, this is not good because we have already declared try catch before, so it will make duplicacy of our code. Uh, And let's assume it this is your code, okay? okay. And now I'm saying that we have a 10 promises, Okay. and we don't know which promises failed it. Okay. So how do you handle it? Like you are creating the nested of try catches, No, sir. No. because this is creating the just like a callback hell. Yes, sir. We create a callback inside the another callback. So Yes. this is good. No, sir. So for So that there is no point to how create can reaction you to it. optimize this? How can you optimize this code? Okay. So we have to uh, check which one give us error. Okay. So for that,
Mm, mm, response one, response two. So can we make changes to our code of Of course promises? you can. Yeah, of course you Okay. can. So for that, sir, we can also assign our code. So like uh, date is not working, something like that. Date is not working. So we can know that it is show data error, and first one is promises. So this one give us key name is not provided. So we can assume that if our second promise will fail, so it will give us date is not working. So इससे हम ट्रैक कर सकते हैं, एक तो ये मेथड हो जाएगा। और तो ऐसे तो यहाँ पर 10 प्रोमिसेस होंगे, तो 10 प्रोमिसेस में ऐसे जाके लिखोगे। नहीं सर। सो सिंपल सा एक सॉल्यूशन तो बताता हूँ। ओके। जैसे कि तो यहाँ पर दो अभी प्रोमिसेस है ना, जी। तो दोनों प्रोमिसेस के लिए अलग अलग ट्राई कैच बना दो। हाँ ठीक है। समझे? तो नो अंतर नहीं, हाँ बाहर। तो बाहर। एक ट्राई कैच एक प्रॉमिस को सॉल्व करेगा, दूसरा ट्राई कैच दूसरे प्रॉमिस को सॉल्व अच्छा, करेगा। अलग अलग फंक्शन में मैं इन्हें कॉल करूँ? यस। यस नो, अलग अलग फंक्शन कॉल नहीं करना है, फंक्शन एक ही रखो। एक ट्राई कैच तुम बना चुके हो, जी सर। लाइन नंबर 45 से तुम दूसरा ट्राई कैच बनाओ जो दूसरी प्रॉमिस को सॉल्व करेगा। ओके ओके ओके, यहाँ से। समझे? यस। ठीक। अब दूसरे प्रॉमिस सॉल्व करेगा, जब पहला प्रॉमिस फेल हो जाएगा तो हमें पहले प्रॉमिस का एरर मिल जाएगा, दूसरा प्रॉमिस अगर फेल होगा तो दूसरे प्रॉमिस का हमें एरर मिल जाएगा। ओके समझे? ओके। अगर कोई डिपेंडेंसी होती तो हम लोग सिंपल सा जो रिस्पॉन्स वन का वेरिएबल है उसको लेट में डिक्लेयर कर लेते और उसको फिर नीचे जाके गेट कर लेते, अगर जरूरत पड़ती है हमें तो। ओके सर, ओके सर। आई गेट माय पॉइंट? यस सर, डेफिनेटली। तो इससे जो तुम्हारा कोड जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगा और थोड़ा समझ में भी आसान रहेगा। हाँ। यस सर, यस। ओके। अंडरस्टैंड। ओके गुड। ओके सो डू यू लिसन दैट द if functions? यस सर। Okay, so why we are using the if functions while we have a available of the many of the functions, normal functions, so why we are getting the if functions? Sir, for creating something like our own libraries, if we want to call a function only one time, so we don't have to use that function another time. So like हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही उसको डेट को प्रिंट कराना है, डेट को प्रिंट कराना है। और उसके बाद उसमें ये चलना नहीं चाहिए डेट, और ये फंक्शन वो कॉल भी ना हो पाए किसी और से, आउटर आउटर कोई पर्सन उसको कॉल ना कर पाए। तो इसके लिए हम इफी फंक्शन को यूज करते हैं। सो वी कैन create a function and we can wrap it inside parentheses and we can call that show function, so it will only execute one time। अगर हम बाहर से इसे कॉल करेंगे तो ये कॉल नहीं होना चाहिए। जी सर। शो इज नॉट डिफाइंड। सो So which type of problem solve the if functions? अभी तो सर एक ही मेथड आ रहा है कि जिसमें हमें फर्स्ट टाइम कॉल करना है, या फिर ऐसा, हाँ, कह सकते हैं कि जब हम सर्वर बनाते हैं एक्सप्रेस में, तो उसमें हमें जो हमारा बैकएंड होता है, डेटाबेस होता है, उसको हमें एक ही बार कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद वो कनेक्ट ना हो तो इसमें हम यहाँ पे कनेक्ट डीबी करके हम एक फंक्शन बना सकते हैं, और उसको हम फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर देंगे, देन उसके बाद वो दोबारा ना चले, तो इसके लिए हम बना सकते हैं ये फंक्शन। Okay. And any other points do you know it related to if? अभी तो सर आ नहीं रहा और फिलहाल। Simply, I just tell you, mostly if you are used for loading the libraries. ओके Okay, ओके this is the first point. ओके। And second point is if we are mostly used for creating the private scopes of the variables and functions. हाँ। I get it my point? यस सर, यस सर। लाइक तुमने यहाँ पर एक इफी फंक्शन बनाया है, इस इफी का फंक्शन के अंदर तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जी। ठीक है, हाँ लाइक अपने नाम का, और वही नाम का वेरिएबल तुम बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ
समझे? तो यस वो प्राइवेट स्कोप बना के हमेशा ही चलता रहेगा। यस सर, यहाँ पे हम डिक्लेयर करके देन बाहर अपने कर सकते हैं। हाँ, बाहर भी उसी नाम का वेरिएबल तुम यूज कर सकते हो, कोई परेशानी उसमें नहीं। नहीं होगी। ठीक है, तो रिमेंबर ये लोग। ओके ओके सर। ओके। सो डू यू नो दैट फंक्शन इज द फर्स्ट क्लास सिटीजन इन अ जावास्क्रिप्ट? यस सर। व्हाई? Sir, function have its ability in JavaScript to pass it as a very value and to return as a value from a function. So the ability of a function to pass itself as a parameter and return itself as a value is known as first class citizen in function. And the function which takes another function is known as higher order function. ओके। Yes. What is the high order function? Sir, if we pass callback or we can say pass another function inside a function, so it is known as higher order function. Outer is known as higher order function, which can take another function as a parameter or as an argument. So outer is known as higher order function, and inner, and if we create inner function, suppose inner, so this will call as first class citizen. Inner function is known as first class citizen, and the outer function is higher order function, which can take callbacks. Okay, just simply create write the one code. Okay. Okay. एक कोड लिखो, उसमें एक फंक्शन बनाओ जो कि इवेंट्स को चेक करता है, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, हम इसमें एक नंबर पास करेंगे और वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर नंबर इवन है तो। ओके। Okay. Okay. इज इवन करके बना दो, या दैट्स करेक्ट। इज टेक अ वन नंबर, या एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स इफ नंबर इज इवन। ओके, सिमिलरली क्रिएट करो एक फंक्शन जो कि ऑड नंबर बताता है। ओके, मतलब ट्रू और फॉल्स बताएगा वो। Okay, sir. ओके, गुड, या इट्स गुड। अब एक काम करो, Hmm. एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, Okay. जस्ट क्रिएट अ वन फंक्शन दैट्स टेक अ वन अरे, Array. या दिस टेक अ वन अरे। ओके, any name you can give it. Okay, Okay. take a one array. Array, E. A. ERR is the, Okay. yeah, ARR. Yes. Okay, is take array. If array contain the at least two numbers Okay. is the even, then it's return the true, Hmm. otherwise return the false. Okay, in a one time only we check only one condition. Okay, in like I give a one array and I put the Uh, you check only even case, at least two number is present in the array. So how you can solve it? You understand what I am saying, Jay? सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक एरे लेंगे जिसमें आप हाँ हाँ। चेक करेंगे कि अगर इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो हमें इज इवन या इज ऑड को हमें चलाना है, राइट सर? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक टाइम पे एक कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। ओके। या तो इवन चेक कर सकते हैं, वो हम तुम्हें बता देंगे कि हमें इवन चेक करना है। हाँ। ओके, सो हमने कहा, हमने तुम्हें को एक अरे दी थी और हमने कहा जय, आप इसमें चेक करके ये बताओ कि इसमें कम से कम दो एलिमेंट इवन होने चाहिए। ओके। ओके, ओके। सो हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन, जो जो तुमने फंक्शन बनाया हुआ है टेक वाला, हाँ हाँ। इसको कैसे तुम ऑप्टिमाइज करो, कैसे लिखो, किसको कैसे अपडेट करोगे? ओके। लाइक हम बाहर से जब इसको कॉल करेंगे तो हम्म। हम तुम्हें एक अरे दे देंगे हम्म। और तुम्हें फंक्शन बता देंगे कि भैया इज इवन वाला कॉल करिए ओके। या फिर इज ऑड वाला कॉल। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। ओके, ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एरे तो। बट कंडीशन याद रखना, हम्म। कंडीशन हमारी ये है कि कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए जो इवन होने चाहिए। हम्म। ठीक है, पहले केस हम इवन का मान के चल रहे हैं, ऑड का बाद में चेक करेंगे। ओके, तो एक फंक्शन बना सकते हैं टेक एरे करके, और इसमें हम फंक्शन तो पास, एरे तो पास कर सकते हैं, और दूसरा हम ये भी पास कर सकते हैं कि ये इवन के लिए चेक करने हैं या ऑड के लिए, है ना? यस 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 यस, सो यू आर जो राइट। सेकंड हमारा आर्गुमेंट है वो हम फंक्शन पास कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये पास करेंगे कि ये इवन है या या ऑफ ऑड? कोर्स, हमने फंक्शन बनाया हुआ तो फंक्शन ही चेक करेंगे ना। ओके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं,
जिसमें हमने कुछ भी रैंडम वैल्यू पास करी है, और या इसमें हम टेक एरे को कॉल करेंगे, तो फर्स्ट वन इज एरे एंड सेकंड वन हम उसका फंक्शन पास कर देंगे जो वो हमें यूज करना है उसके अंदर। तो यहाँ पे या हम कह सकते हैं कि हमने लॉजिक भेजा है समथिंग, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना होगा इस लॉजिक के हिसाब से कि जो वैल्यूज हैं वो मीट कर पा रही है नहीं, एटलीस्ट टू वैल्यूज मीट कर पा रही है नहीं कर पा रही। ओके, यस सो तो एरे तो हमने पास कर दिया, हम इसमें एक लूप चला सकते हैं, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और रिटर्न कर सकते हैं हम इसमें एक एरे, और हम इसमें चेक कर सकते हैं इज इवन, अगर हमने लॉजिक पास करा तो लॉजिक में हमें एरे की वैल्यू पास करनी है, और उसको हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, करेगा रिटर्न करेगा। और हमें क्या बताना है कि इसमें जो एटलीस्ट दो नंबर इवन ये जो लॉजिक के हिसाब से वो मैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, है ना? यस 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 यस, यू आर राइट। कम से कम दो नंबर हमें इवेंट चाहिए। ओके, सो राइट, तो चलिए इसमें लॉजिक तो हमें मिल रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, काउंट वेरिएबल रख सकते हैं जिसे हम 0 पे पास करेंगे, और अगर ये इवन हो जाता है या फिर ये ट्रू आता है तो हम उस पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो हम ये कर सकते हैं फिलहाल, रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट आता है ट्रू तो उसके हिसाब से काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, और रिटर्न कर देंगे कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 के तो आ जाए हमारा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम इसको जब कंसोल करेंगे या फिर कॉन्स्ट रिजल्ट में इसे हम पास करेंगे रिजल्ट, तो ये बताएगा कि दो फंक्शन इवन है कि नहीं है। अगर हम इसमें से सिर्फ ऑड को डालेंगे 1 3 5 7 9, तो इसको फॉल्स बताना चाहिए, और अगर इसमें 8 डालेंगे तो अभी भी फॉल्स होना चाहिए, और अगर इसमें ग्रेटर देन 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बताना है हमें, और इसमें अगर हम 6 पास करेंगे तो ये ट्रू बताएगा। गुड 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 चाइल्ड। सो मैं जैसे देख रहा हूँ, यू रिटन approximately 1 2 3 4 5 6 7 8, and approximately you write that 8 to 10 lines of code, am I right? यस सर। Yeah, can you optimize this code in a, you write the code in a one line, हाँ सर, you get this functionality? सर दिस लाइन दिस फंक्शन और इन दिस दैट फंक्शन No, no, inside the function, इनसाइड टेक जो एरे बाकी फंक्शन। कोड लिखा हुआ है, या जो पूरा लॉजिक लिखा हुआ, इसको एक लाइन में अपडेट कर सकते हो क्या? एक लाइन में ऑप्टिमाइज कर सकते हो? ये पूरी फंक्शनैलिटी हम लोग एक लाइन में गेट करना चाहते हैं। अच्छा, पूरी लाइन, ओके, ये जो सारा कोड है इसको सर। या इसको एक लाइन पे हमें चाहिए, मतलब तुमने फॉर लूप लगाया है क्या? तुम्हारे पास कोई और अदर अप्रोच है जिससे हम ये फंक्शनैलिटी गेट कर सकें? सर एक और तो हमारे पास एक लाइन का कोड हो जाएगा। हाँ, फिल्टर फिल्टर मैप का यूज कर सकते हैं सर, उसका यूज कर सकते हैं। ये आपको यूज करके दिखाइए। ओके, सो हम यूज कर सकते हैं कि जैसे हम एरे डॉट में हम एक सम होगा, सम फिल्टर, फिल्टर यूज कर सकते हैं, फिल्टर, इसमें हम फर्स्ट हमारा, इसमें हम पास कर सकते हैं इज, या लॉजिक पास कर सकते हैं। तो लॉजिक पास करने के बाद हमें ये एरे रिटर्न करेगा जो भी हमारे इवन या ऑड होंगे, तो उसकी लेंथ अगर हमारी ग्रेटर देन हुई इक्वल टू 2 के तो हम
रिटर्न कर सकते हैं इसको ग्रेटर देन हुई 2 के एरे डॉट फिल्टर लगेंगे तो लॉजिक में पास कर फंक्शन और फंक्शन में वैल्यू पास होती है करके इसमें एरे रिटर्न करेगा और इसकी लेंथ 2 से ज़्यादा हुई तो ये ट्रू दे देगा अदरवाइज फॉल्स। तो ये चल जाना चाहिए सर कि यहाँ पे अगर हमने 6 और 8 है, अगर मैं इसको एक ही सिंपल पास करूँ तो ये फॉल्स बताएगा और अगर मैंने एक और इवन वैल्यू दे दी तो ये ट्रू बताएगा और अगर मैंने यहाँ पे इज ऑट पास कर दिया तो ये ट्रू बताएगा और मैंने यहाँ पे एक हटा दिया तो ये फॉल्स बताएगा। जी सर। Okay, good. Yeah, it's correct. Okay, and do you know that the currying? सर I know the concept. I think curring is like something is add 2 and 3, something like that. I don't know Yeah. full thing sir, मुझे पूरा अच्छे से पता नहीं है इसके बारे में। Okay. Got it. Uh, so do you listen that the slice method and splice method and reduce method? Yes sir. So Can you explain a little bit? okay, so if we create an array 1 2 3 4 and we want to create a copy of that first array inside second array, we Oh, don't want to pass a reference, we want to create a new array by first array, so we can use slice method. So we the first argument is index, so कहाँ से हमें स्टार्ट करना है स्लाइस करना, कहाँ से स्टार्ट होगा, और सेकंड वन हम एंडिंग इंडेक्स दे सकते हैं, अगर हम पास नहीं करेंगे तो पूरे एरे की ये लास्ट वैल्यू तक ले लेगा और ये हमें एक एरे रिटर्न कर देगा। तो जो हमारा सेकंड एरे होगा वो हमारा इसका क्लोन होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये होता है हमारा स्लाइस मेथड। और जो हमारा स्प्लाइस मेथड होता है वो क्या करता है कि line number three. So undo the code. Yeah. ओके So line number three, you are sorry. Line number four. This logic is correct. आई You are checking the array, both array are equal or not. सर जब भी हम कोई क्लोन बनाते हैं एरे का, सो अगर हमने नॉर्मली एरे बना के उसमें हमने पास करा एरे वन को, तो ये क्या होता है, ये रेफरेंस पास हो जाता है एरे फर्स्ट का। तो इससे क्या होता है, अगर हम Okay. एरे टू में पुश करेंगे कोई कोड तो वो ओरिजिनल एरे में भी अफेक्ट करेगा क्योंकि उन दोनों के पास सेम Okay. So रेफरेंस। so simply remove the fourth line. ओके Only fourth line, remove it. Yeah. Now in a fourth line, you write the console and check array one is called array two. ओके Write it in a fourth line and tell me what the output you getting. ओके Array one is equal to array two. सो Yeah. ये सर ये देगा ट्रू क्योंकि इनका जो रेफरेंस होगा वो सेम होगा जो हम यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहे हैं। बट अगर हम स्लाइस मेथड यूज Okay. करेंगे तो वो क्या करेगा, एक पूरा न्यू एरे बनाएगा और उसमें जो वैल्यूज होंगे फर्स्ट एरे के उसको ये गेट करके नया एरे बनाता है। तो इससे हमारे पास क्लोन नहीं होता, उसका मतलब क्लोन होता है और रेफरेंस पास नहीं होता। तो ये मेथड हम स्लाइस के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा स्प्लाइस मेथड होता है वो क्या करता है कि वो ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। तो जो स्प्लाइस मेथड है वो म्यूटेबल मेथड होता है। तो स्प्लाइस मेथड में हम पहला तो हम इंडेक्स पास करते हैं कि हम कहाँ से एक्शन करेंगे, तो फर्स्ट वन इज इंडेक्स। हम सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो होता है कि हम कितने आइटम्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि एक आइटम को डिलीट करेंगे तो अभी हम जीरो इंडेक्स पे है, फर्स्ट को हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो है कि हम क्या ऐड करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं जे ऐड करना चाहता हूँ, तो जो हमारा एरे फर्स्ट देगा वो क्या देगा, जय 2 3 4, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट आइटम एक आइटम को डिलीट कर दिया और हमने जय को पुट कर दिया। जय एरे इज नॉट डिफाइंड, सॉरी एरे वन दैट यस सर। सो ये है स्लाइस मेथड का वर्क। और जो हमारा रिड्यूस मेथड होता है वो हमारे एरे एरे में परफॉर्म करता है एक मेथड को रिड्यूस, जो क्या क्या करता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। जो नॉर्मली मेथड होते हैं हमारे पास मैप फिल्टर, तो वो क्या करते हैं, हमें पूरा एक एरे रिटर्न करते हैं। बट हमारा जो रिड्यूस मेथड होता है
वो हमें एक सिंगल रिजल्ट देता है। तो फर्स्ट वन इसमें हम रिड्यूस मेथड लगाएंगे। तो सपोज हम इसमें इसका टोटल रिटर्न करना चाहते हैं एरे का, तो यहाँ पे हम टोटल और या फिर करंट कह सकते हैं, और दूसरा होता है एक्यूमुलेटर। तो हम रिटर्न क्या कर सकते हैं, टोटल प्लस एक्यूमुलेटर, और हम एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं जो कि 0 हो सकता है। यहाँ पे हम इसका सम में डाल सकते हैं और कंसोल डॉट लॉग करंट एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा हमें इनका सम, तो जो होगा 10। तो ये कैसे होता है कि ये एक डिफॉल्ट वैल्यू लेता है। तो फर्स्ट वन ये क्या करता है कि 0 और 1 के परफॉर्म करता है टास्क, तो दोनों का सम जो होगा वो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर या टोटल बन जाता है, जो कि 1 बनेगा, उसको वो 2 के साथ परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद जो 3 होगा वो नेक्स्ट एक्यूमुलेटर या टोटल बनता है, उसको हम 3 के साथ, एंड देन सेम 6 को हम 4 के साथ। तो ऐसा ये रिड्यूस काम करता Good, good. Do you listen that the index of or find index? है। इंडेक्स सर, Index of and find index. Do you listen it? This is are the array methods. नो सर, आई डिडंट यूज इंडेक्स एंड फाइंड इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ सर, आई थिंक इसमें इंडेक्स ऑफ हम ऐसा यूज कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ की। Oh, my question is simply, हाँ if you are using the index of and find index, so what is the simple difference in both methods? सर, इंडेक्स ऑफ एंड फाइंड इंडेक्स ऑफ, आई थिंक इंडेक्स ऑफ अगर हम कोई एरे में इंडेक्स ऑफ करेंगे तो शायद उसका जो भी इंडेक्स होगा, अगर हम 2 पास करेंगे तो उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। फाइंड इंडेक्स का मुझे वैसे नॉलेज नहीं है सर इन दोनों कैट में। Okay. So, Jay, in my side, that's interview completed. So, you want to ask any question? यस सर, क्या क्या मुझे इसमें सुधार करना पड़ सकता है? या जाए इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अगर मुझसे पूछा जाए तो लाइक जैसे कि मैंने आपको पूछा था कॉल बैक्स के बारे में जी सर। कि कितने टाइप के होते हैं तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसको बहुत क्लियरली पढ़ो और उसकी काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज करो, पहली चीज़ तो ये है। ओके सर। ठीक है ना। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि तुमने अभी बोला लास्ट क्वेश्चन में मैंने पुट किया इसमें कि इंडेक्स ऑफ और फाइंड इंडेक्स यस सर। में क्या डिफरेंस होता है, तो दिस आर द कॉमनली यूज फंक्शन। ओके, ओके तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन है इंडस्ट्री में, ओके तो अगर आप इन पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। ओके। सो एक तो क्वेश्चन का आंसर बताने से कोई जज नहीं हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी नॉलेज है आपको इस चीज़ में, बट थोड़ा और डीपली इस चीज़ को लेने की कोशिश करें। मतलब ओके सर। आपको नॉलेज है उस चीज़ में लेकिन उसको थोड़ा और इन्हेंस करेंगे तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा रहेगा उस चीज़ में। ओके सर। ओके। 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 लाइक जैसे कि ईफी के बारे में मैंने थोड़ा पूछा था, जी सर। तो उसके बारे में आपको जानकारी है लेकिन किस केसेस में उसको यूज़ कर रहा है या फिर उसका एक एग्जांपल जो होता है वो आपको बेटर पता होना चाहिए उस चीज़ को यस अच्छी सर। तरीके से। ओके। यस सो उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करो, बट इट्स वेरी गुड। सर। ओके सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक्स।